Hello and welcome back once again to Steven Sir Makes It Easy, where me, Steven Sir, tries to make your life a little bit more simpler with concepts concerning accountancy and finance. Before I get started with the task for the day, very quickly a few reminders. You can connect with us on our Facebook page, our Instagram ID, as well as the Twitter handle. And the most important one is the Telegram channel given above. If you have not installed Telegram on your mobile phone and you are a subscriber of the channel, it's my request, please get connected to the Telegram channel above, join it, so that this particular Telegram channel is used for official communication to inform you, to update you about the lectures that will be premiered the next day, as well as the most important thing, the PDF of the question and answer, whatever is coached and tutored on this particular platform will be shared at the end of that particular chapter, so that you can download it and use it for your future reference basis. Also, if you do intend to purchase the textbook from which the necessary questions are explained during the various lectures, the purchase link is provided in the description of every lecture. And most importantly, if you have missed out the past tense, that is the last lecture, there is an I button given above. Please click it, watch that particular lecture, and then you can come here. Very importantly, at the end is, if you have not subscribed to our YouTube channel, please do make that a task for the day and subscribe to our channel, and together with that also press the bell icon so that Mr. YouTube notifies you about lectures which are uploaded on this particular platform. That's as far as the reminders are concerned. Let me get started with today's lecture. Hello and welcome back once again to the teaching part of this particular lecture. Okay, the Purana thing is what? Is a subject. Okay, that is obviously bookkeeping and accountancy. जो नया आज है, पहले वो मैं इंट्रोड्यूस करा देता हूँ, because it's been a long time that a different chapter was being taught to you. So something different, okay, and something absolutely new. In our index of bookkeeping and accountancy for 12th standard Maharashtra board level, today onwards in upcoming series of lectures, we will be concentrating upon the chapter by the name of Bill of Exchange. It's the 7th chapter. Obviously, I am not going in the sequence of this particular textbook. Okay, ऐसा क्यों है कि सर आपने फर्स्ट चैप्टर, यस मैंने किया, बट मैंने सेकंड, थर्ड, फोर्थ नहीं, डायरेक्टली एक ओलंपिक का जंप मारा है और मैं 7th पे गया हूँ. जस्ट टू टेल यू दैट ये जो 9th चैप्टर है, एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, माय डियर, वो भी कम्प्लीटली पढ़ाया जा चुका है. आपको अगर नहीं पता है तो प्लीज़ प्लेलिस्ट में आप वो ढूंढ सकते हो, वो नाम के साथ में आपको पूरा चैप्टर अप्रॉक्सीमेटली 30-31 लेक्चर्स उसके भी आपको मिल जाएंगे. ओके, दिस इज रीज़न कि मुझको एक चैप्टर विच इज़ बिल ऑफ एक्सचेंज, विच इज़ बेस्ड ऑन जर्नल एंट्रीज. यू मे रिमेंबर जर्नल एंट्रीज. आई एम अनश्योर हाउ मेनी ऑफ यू अंडरस्टूड जर्नल एंट्रीज. ओके, क्यों? क्योंकि आने वाले काफ़ी ऐसे चैप्टर्स रहेंगे जहाँ पे आपको वे दो चीज़ों का ज्ञान होना ज़रूरी है. एक जर्नल विच आई विल बी डूइंग इन सम अमाउंट ऑफ टाइम, और दूसरा लेजर. कि जो फाइनल अकाउंट्स आपने किया वो बेसिकली लेजर था, टू बाय, डेबिट, क्रेडिट. ओके, सो राइट नाउ डोंट वरी, चिंता ना करें 7th लेक्चर या सॉरी 7th चैप्टर क्यों है. It is because my teaching experience tells me, has already proved to me that as far as sequence for the board examination is concerned, this would be the correct one. Okay, so today and for upcoming some number of lectures, the only thing we will try to understand, ये bill of exchange होता क्या है. Okay, who draws this bill of exchange, what does he write in that, okay, etc etc etc. You will notice थोड़े टाइम में कि this is what is bill of exchange.
it has no mathematics in it, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड नहीं है, एज वेल एज इसमें अकाउंटेंसी नहीं है, डेबिट क्रेडिट जर्नल लेजर बैलेंस शीट, नो। सो बेसिकली अकाउंट्स में एक ऐसा टॉपिक है जो ये है, जो आता 5 मार्क के लिए है, नॉर्मली ऑब्जेक्टिव्स में आता है, ओके, बट देन उसमें अकाउंट्स नाम का कोई चीज़ नहीं है। फॉर अ फ्यू लेक्चर्स टू कम वी विल कॉन्सेंट्रेट अपॉन दिस थिंग कि ये क्या है, इसको कौन ड्रॉ करता है, कब ड्रॉ करता है, कब ज़रूरत पड़ती है, और अगर ड्रॉ करता है तो इसमें लिखते क्या है, ओके। सो बाय द एंड ऑफ टुडेज लेक्चर आई विल इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट टू यू। इन द नेक्स्ट फ्यू लेक्चर्स जितनी वेराइटी है इसकी, लिटिल बाय लिटिल, नॉट लॉट बाय लॉट, एक लेक्चर के अंदर पूरा 6 वेराइटी पढ़ा दो, नो, लिटिल बाय लिटिल बाय लिटिल, okay. So right now don't worry about even copying this. At the end of the lecture I will in a different manner show this thing कि इसको copy किस तरह करना है। बाकी you can do it on the left side of the page, you can do it on the right side of the notebook, left or right, okay. Moving on, पहले तो थोड़ी मैं आपको पुरानी कहानी बता देता हूँ। वेल कहानी नहीं, एक्चुअली हकीकत। व्हाट, ये मेरे पीछे क्या है, बाजार, इट्स अ मार्केट, ओके। मार्केट में क्या अवेलेबल है, ऑलमोस्ट एवरीथिंग, ओके। सस्ता सामान भी अवेलेबल रहता है, महंगा सामान भी अवेलेबल रहता है, गुड्स सर्विसेज भी अवेलेबल रहते हैं, ओके। अगर मोबाइल खरीदना है तो वो भी अवेलेबल होगा, मोबाइल को रिपेयर करवाना है तो उसका सर्विस भी अवेलेबल रहेगा। सो इट इज़ अ मार्केट, दिस दैट सारे मार्केट है। राइट नाउ व्हाट हैव यू टू पुट इन योर माइंड कि मार्केट इज अ प्लेस जहाँ पे कौन कौन आता है। आते तो बहुत लोग हैं, बट वो 2 कैटेगरीज में आते हैं। फर्स्ट, कुछ लोग होते हैं सेलर, बहुत लोग होते हैं जिनका नाम होता है बायर। सो अ मार्केट इज अ मीटिंग प्लेस, ओके, ऑफ नॉर्मली 2 कैटेगरी ऑफ पीपल, वन कॉल्ड एज सेलर, द अदर कॉल्ड एज बायर। ये दोनों लोग अपना दिमाग लड़ाते हैं, ये दोनों लोग सोचते हैं क्या बेचना है, कोई सोचता है क्या खरीदना है, एक सोचता है कितने में बेचूंगा, दूसरा सोचता है कितने में खरीदूंगा, क्या मेरे को बार्गेनिंग करनी पड़ेगी। सो इनका दिमाग यहाँ पे मतलब मार्केट के एरिया में चलता है, ओके। बेसिकली सोचने के बाद में, बार्गेनिंग करने के बाद में, व्हाट इज द कंक्लूजन ऑफ ऑल ऑफ दिस, अ डील, ओके। मेरे को ये प्रोडक्ट पसंद आ गया, मैंने ये प्रोडक्ट दुकानदार से खरीद लिया। वेल दैट इज द रीजन दैट इन द एंटायर, नॉट जस्ट द कंट्री ऑफ स्टेट ऑफ महाराष्ट्र और द कंट्री ऑफ इंडिया, इन द होल वर्ल्ड, पूरी दुनिया में मार्केट का कॉन्सेप्ट है, ओके। और पूरी दुनिया में मार्केट में होता क्या है, बाइंग एंड सेलिंग, एक डील होती है, वो डील में दुकानदार हैप्पी होता है, वो डील में कस्टमर भी हैप्पी रहता है, और उनके बीच में कुछ लेन देन होता है। नाउ ये जो लेन देन है ये कौन से बेसिस पे होता है लेन देन, ओके। 2, वेल होते 3 है, कैश, क्रेडिट, बार्टर, बट राइट नाउ हम लोग तीनों पे चर्चा नहीं करने वाले। सो what does a cash transaction mean? You see what is happening above between a buyer and a seller, okay, is nothing but a transaction, okay. बायर ने कुछ खरीदा और बायर ने उसके एवज में, उसके रिटर्न में दुकानदार को पैसे दिए, as simple as that. Depending upon the country that you are in, कोई ना कोई करेंसी एप्लीकेबल रहेगी। Now what is very important, जब दुकानदार को पैसे मिल जाते हैं, he is the most happiest person. Well, like you see, okay, हमारे पीछे इमेज में खुशियां ही खुशियां उमड़ रही हैं, because that is the reason एक दुकानदार अपना दुकान सुबह सुबह को ओपन अप करता है कि मैं कुछ बेचूंगा, बदली में पैसे आएंगे और इस प्रकार की शांति मुझे मिलेगी। वेरी इंपॉर्टेंट दैट जब मैं चीज़ें बेचूंगा और पैसे आएंगे, मुस्कान, ओके, भले वो जोकर की थोड़ी अजीब वाली मुस्कान हो, बट डेफिनेटली। सो बेसिकली व्हेन अ शॉपकीपर is
paid the amount of the goods that he has sold or the services that he has given. At that very time, it is a happy moment. Problem कहाँ पे होता है? Let's understand that. Okay? So एक दूसरा टाइप का ट्रांजैक्शन है. अब ये दूसरा टाइप का ट्रांजैक्शन कौन सा होता है? क्रेडिट ट्रांजैक्शन. So let's through a very simple but a very nice clip try understanding कि ये उधारी का ट्रांजैक्शन क्या होता है. ओके, सो थोड़ा ध्यान देते हैं यहाँ पे हम. खाते में लिख लीजिएगा. खाते में लिख लेना मतलब क्या है? पैसे अभी नहीं दे रहा, पैसे बाद में दूंगा. 1 लीटर सरसों तेल लिख लेना जो मैं खरीद के जा रहा हूँ. बेचारा दुकानदार ऐसा है, बेचारा मतलब लिख लो भाई. कस्टमर के साथ झगड़ा नहीं कर सकता है. कर तो देगा बट राहुल भाई एक कस्टमर बहुतों को दूर कर सकता है. नॉट गेटिंग पॉलिटिकल हियर, नो सपोर्ट टू अ पॉलिटिकल पार्टी. आज महीना का आखिरी दिन है और आपका पूरा बिल हुआ 3000 रुपए. पहले पैसा जमा करा, उसके बाद सामान ले जाना. कस्टमर जो रहते हैं ना, बस लाना भूल गया, बस आज सामान दे दो, सामान रख कर पैसा ला देता हूँ. काफी लोगों के पास नहीं, ऐसा नहीं चलेगा. पहले पैसा. काफी बहाने होते हैं पैसा नहीं देने के. नाउ उधारी या क्रेडिट पे डील करना कोई क्राइम नहीं है. ओके, क्रेडिट हर एक जगह पर चलता है. ओके, नाउ व्हाट डू आई मीन बाय दैट? जब क्रेडिट पे डील होता है, गुड्स तो बेच दिए पर पैसा नहीं मिला. ऐसा नहीं है कि कस्टमर भाग गया, बट हर रात को दुकानदार को शांति की आरामदायक नींद नहीं आती है. नो, इट्स डिफिकल्ट बिकॉज ही इज कॉन्स्टेंटली वरिंग कि वो कस्टमर. अरे कोई भी अगर मेरे को मेरा पैसा नहीं देगा तो फिर मेरा तो नुकसान होगा. सो दैट एक दुकानदार को भी टेंशन ना हो और एक कस्टमर को, एक क्लाइंट को टाइम भी मिले पेमेंट देने के लिए. बिकॉज नॉट एवरी कस्टमर एवरी डे ऑफ द मंथ उसके जेब में बहुत पैसा रहता है, नहीं होता है. ओके, कुछ लोगों को जब उनका पगार मिलता है at the end, especially when these COVID times are going on, it's difficult. Many people have lost their job. Many people who were earning very well had to take pay cuts. पगार उनका कम हो गया है तो उधारी की ज़रूरत और बढ़ गई है. ओके, तो उधारी क्रेडिट पे ट्रांजैक्शन चलता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है. कस्टमर 1 महीने बाद, 40 दिन बाद, 15 दिन बाद, 2 महीने बाद पैसे देता है. बट टिल दैट टाइम a shopkeeper should not have to worry. Therefore, under the Negotiable Instrument Act, very quickly, सर अभी ये क्या तुमने ऊपर डाल दिया, ये कानून का नाम है. ओके, जो काफ़ी पुराना है, 1881 काफ़ी पुराना है. एंड 2018 में जो पुराना नहीं है उसको अपडेट किया गया है. ओके, ऑब्वियसली ना अराउंड लॉन्ग टाइम के बाद में. ओके, मे बी अ सेंचुरी के बाद में. ओके, नाउ इन निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, निगोशिएबल या निगोशिएशन का यहाँ पे मतलब क्या है? जब तक आप डॉक्यूमेंट की बात करते हो, एक ऐसा डॉक्यूमेंट जो कुछ समय के लिए मेरे पास था और मैं उसका मालिक था. अब ये डॉक्यूमेंट में ऐसी खूबी है, क्वालिटी है कि I can give it to somebody else and that somebody else will become the owner of it. So I repeat myself. In Negotiable Instrument Act, okay, broadly something called as bill of exchange, something called as promissory note and something called as check. Now the thing is, check के बारे में आपने बहुत कुछ सुना है. You have seen it, felt it. मे बी कभी आपने भी चेक पे कुछ लिखा गया रहेगा. बिल ऑफ एक्सचेंज एंड प्रोमिसरी नोट इतना कुछ नहीं आपने सुना रहेगा. नो प्रॉब्लम,
नेक्स्ट कुछ मिनट्स में आप बहुत कुछ बिल ऑफ एक्सचेंज के बारे में जान जाओगे। ओके, प्रॉमिसरी नोट के बारे में चर्चा अभी नहीं करेंगे, वो मोस्ट प्रोबेबली कुछ लेक्चर्स आगे होगा। सो बिल ऑफ एक्सचेंज क्या है, प्रॉमिसरी नोट क्या होता है, उसका डेफिनेशन क्या होता है, चेक क्या होता है, उसका डेफिनेशन क्या होता है, वो कौन बनाता है, उसके संबंध में कनेक्शन में कौन से कानून है, अगर उसके साथ कुछ गड़बड़ होता है, बिकॉज ऑल ऑफ दीज आर नॉट कोरा कागज, नो, उसके ऊपर कुछ लिखा गया है। सम पीपल हैव साइन्ड ऑन दैट, इट इज वैल्यूएबल, इट इज नॉट 2 रुपया 10 रुपया 15 रुपया, नहीं, कभी कभी तो लाखों का रहता है। अभी लाखों की चीज में गड़बड़ नहीं हो सकता है? यस, क्यों नहीं हो सकता है। सो अगर गड़बड़ होता है, then what is the rule and regulation about it? Everything has been mentioned in the Negotiable Instrument Act. Okay, many students जो आगे जाके लॉ की पढ़ाई करेंगे, एक कानून जो उनको समझना और याद रखना है is going to be the Negotiable Instrument Act। के अगर कभी भी कोर्ट मामले में अगर बिल ऑफ एक्सचेंज का कुछ काम आएगा, प्रोमिसरी नोट का कुछ का इशू रहेगा, या चेक, वो तो काफ़ी बार रहता है। ओके, तो इसके तहत जो भी चीज़ लिखा गया है उसको लॉयर को समझना पड़ेगा, बिकॉज ही हैज़ टू अकॉर्डिंगली फाइट दैट पर्टिकुलर केस। ओके, नाउ लेट्स गो थ्रू अ फ्यू डॉक्यूमेंटेशन, अ फ्यू वर्डिंग्स जो हमारे अच्छे से टेक्स्ट बुक में इसके बारे में दिए गए हैं। आई रीड इट, उसके अंदर कुछ इंपॉर्टेंट रहेगा तो मैं आपको डेफिनेटली बता दूंगा। सो वेरी क्विकली लेट्स रीड कि ये जो बिल ऑफ एक्सचेंज है ये होता क्या है, एंड बाय द एंड ऑफ द लेक्चर आई विल शो इट टू यू एंड एक्सप्लेन अ लिटिल बिट मोर ऑन दैट। कमर्शियल प्रैक्टिस मतलब बिजनेस का प्रैक्टिस, ओके, दैट्स कॉल्ड एज कमर्शियल प्रैक्टिस, हैज फ्लरिश्ड to treat bill of exchange and promissory notes as valuable instruments of credit to an extent that when a written promise is made in proper form, bill of exchange is a not हिंदी फिल्मों में डायलॉग होता है ना, ओके, मैं जो जुबान देता हूँ वो पत्थर की लकीर है, मुझे बाहुबली में जो बाहुबली की मम्मी जी थी, ओके, शिवगामिनी देवी, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ओके, मतलब जो मैं बोलती हूँ वही कानून है, ऐसा कुछ अच्छा था ना, मतलब पिक्चर में काफ़ी इफेक्टिव लगता है, नॉट व्हेन से इट, ओके। हाँ, सो बेसिकली एक ज़माना था जहाँ पे आप जो वादा देते हो वो ओरल था, ओरल, मुंह खोला कुछ शब्द बाहर आए, हाँ ये मेरा वादा है। देन जैसे ही ज़माना बदल गया, ये वादे से लोग मुकरने लगे, नहीं मैंने कब बोला था, ओके। एग्जाम्पल, अ फ्रेंड ऑफ माइन, ही प्रॉमिस्ड सम अदर फ्रेंड्स ऑफ माइन, देखो महीने के 15 तारीख तक काम हो जाएगा, बोला, ओके, 15 तारीख होके निकल गया, उसके बाद दूसरे लोग उससे पूछने लगे तूने तो बोला था 15 तारीख तक काम हो जाएगा, तो ये वाला पहला वाला जिसने वादा किया था वो क्या बोलता है, बट क्या मैंने महीना मेंशन किया था। सो आई रिपीट, व्हेन यू से समथिंग इन वर्ड्स देयर इज अ पॉसिबिलिटी टू चेंज इट, देयर इज अ पॉसिबिलिटी टू चेंज द कंटेक्स्ट एंड द मीनिंग ऑफ इट। हाँ, तुम घुमा सकते हो, बट जो लिखा है वो तो लिखा है यार, उसको थोड़ा रब आउट करना मुश्किल है, और रब आउट करेंगे तो पता तो डेफिनेटली चल जाएगा। यस यस, सो आई रिपीट माई सेल्फ, बिल ऑफ एक्सचेंज, प्रोमिसरी नोट, ये चेक, ये सब क्या, ये सब रिटन है, ये सब हवे में ऐसे वर्ड्स उड़ रहे हैं, नहीं, रिटन है, सो दैट इन फ्यूचर व्हेन आई से कोर्ट कचहरी में मामला पहुंचेगा, कोर्ट कचहरी में इसने क्या बोला उसने क्या बोला, अरे किसी ने कुछ भी बोला रहेगा, दैट्स नॉट अ प्रूफ और अ सबूत। लिखा क्या है, क्या कुछ लिखा था, पेपर लेके आओ, दैट्स एब्सोल्यूट एन एविडेंस, सबूत, कोर्ट उसी पे चलता है। किसी को जेल में सालों तक अगर डाला जाएगा तो नॉट जस्ट बिकॉज कोई उसका दुश्मन है और कोई गया और गवाही देकर आया उसके खिलाफ, नहीं, कुछ सबूत होना ज़रूरी है। देयर हैज़ टू बी एन ऑडियो, अ वीडियो, अ रिटन प्रूफ। आजकल तो वीडियो भी ऑडियो भी
ट्रिक किया जा सकता है, क्रिएट किया जा सकता है, मैनिपुलेट किया जा सकता है। मतलब दैट इज, जमाना इतना बदल गया है। सो बेसिकली जहाँ तक ये चैप्टर की बात है, ओके, दीज थिंग्स, हाँ, प्रोमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज, चेक, ये क्या है? रिटन, वेरी इंपॉर्टेंट, ओरल नहीं है। इफ यू जस्ट रीड, द इंस्ट्रूमेंट्स बीइंग निगोशिएबल instruments can be transferred from one person to the other. That's a very important thing. Negotiable का मतलब क्या होता है? Why is it called as a negotiable instrument? Transferability. मंडे मेरे पास था, ट्यूसडे तेरे पास है, वेडनेसडे फ्राइडे, ये तो घूमता रहा है। हाँ, तो उससे एक्चुअली बहुत ऐसे काम है जो कम हो जाते हैं जब एक डॉक्यूमेंट को एक पार्टी से दूसरी पार्टी से तीसरी पार्टी के नाम में ट्रांसफर किया जा सकता है। अ लिटिल बिट डाउन, निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881, भले ही दिस इज वेरी ओल्ड, it has been amended and there has been modifications and changes made in it. 2018 states that the negotiable instrument means, क्या है negotiable instrument? Promissory note, bill of exchange or a check, payable, पेमेंट तो करना ही है ना, ओके, either to order or bearer, ऑर्डर का मतलब जब किसी का हुक्म आता है पैसे देना पड़ेगा, या जब कोई खुद आता है। बेरर का मतलब क्या? देखो ना, मैं आया हूं, देखो ये पेपर लेके आया हूं, ये पेपर पे लिखा है मेरे को पैसा मिलना चाहिए, पैसा दे दो, मामला खत्म हो जाएगा। ओके, अब बिल ऑफ एक्सचेंज, ये जो चैप्टर है, इज अ रिटन एक्नॉलेजमेंट। रिटन एक्नॉलेजमेंट का मतलब क्या है? हाँ, कबूल है। ऑफ डेप्ट, डेप्ट मतलब कर्जा, एंड ऑल्सो अ प्रॉमिस, वायदा, टू पे द डेप्ट अकॉर्डिंग टू द टर्म्स ऑफ द बिल। ओके, कि जो कर्जा है वो जितनी महूलत लिखा गया है, कितना लिखा है, 3 महीना, 2 महीना, 4 महीना, 40 दिन, 50 दिन, उसके बाद में इसका पेमेंट भुगतान हो जाएगा। ओके, लेट मी गो अ लिटिल अहेड एंड शो यू द एक्चुअल वर्डिंग्स, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, क्योंकि आई एम नॉट वेरी श्योर, कभी कोई पिक्चर में, कभी कोई सीरियल में, ओके, कहाँ ना कहाँ पे यू हैव डेफिनेटली सीन that these lawyers, advocates, okay, क्या तो उनके पास किताबें बहुत है, डॉक्यूमेंटेशन बहुत रहता है, okay, and many a times ना they do a lot of markings. Why do they do a lot of markings? Because when they go and speak in the court, okay, एक इमोशनल सीन, रोना धोना, खुशी, कभी गम, इमोशनल सीन, you know, it looks very good, दिल को छू जाता है, fine. But a judge cannot be an emotional person, okay? क्योंकि इमोशंस में बहकर काफी बार डिसीजन रॉन्ग भी हो सकता है। हाँ, सो अ जज इज अ वेरी रैशनल पर्सन, वो इमोशन को परे रखता है, परे। इफ somebody has to be given a life term, क्योंकि उसने कुछ गलत काम किया है, एक्सटेंट ऑफ दैट गलत काम हम नहीं डिस्कस करते, बट कुछ गलत काम किया है, एंड इफ द जज सीज क्या, बट इसके तो अभी अभी शादी हुई, या तो शादी होके इसके छोटे छोटे बच्चे हैं, तो उनको ख्याल कौन रखेगा, नहीं, इसको हम सज़ा नहीं दे सकते हैं। नो, इमोशंस नहीं चलता, क्या चलता है? फैक्ट एंड फिगर्स। क्या फैक्ट, क्या है, लिखा क्या है, कानून में क्या लिखा है, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट में क्या लिखा है, एज फार एज द बिल ऑफ एक्सचेंज इज कंसर्न। हाँ, तो उसमें डेफिनेशन लिखा है। ओके, बड़े बड़े कंपनीज अपने टीम में बड़े बड़े वकीलों को, एक्टर्स, स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी, सब जो बड़े जिनको अफोर्ड हो पाता है, दे कीप अ लॉयर, ओके, ऑन रिटेनरशिप बेसिस। मतलब क्या है, अगर कोई बड़ा बवाल हुआ और उनको पुलिस या कोर्ट जाना पड़ा, जज उनके पहले पहुंच जाता है, सॉरी जज नहीं, ओके, एडवोकेट जज के पहले पहुंच जाता है और वो बोलता है देखो सर ऐसा लिखा है, देखो सर वैसा लिखा है। कहाँ से लिखा है? कानून में लिखा है। द जज ऑब्वियसली नोज दैट, बट द एडवोकेट एंड द लॉयर हैज टू टेक द केस अहेड थ्रू जो लिखा गया है। ओके, दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्या लिखा गया है? सेक्शन 5, तो जो भी कानून होता है ना, वो कैटेगरीज में बांटा गया है। ओके, हर एक को एक आप सेक्शन कह सकते हो, फाइन। जैसे एक अपार्टमेंटल बिल्डिंग, ओके, या कोई स्टेट्स ऐसे होते हैं जहाँ पे डेवलपमेंट सेक्टर के हिसाब से है।
ओके, तो इफ़ यू गो टू द वाशी पार्ट और द नवी मुंबई पार्ट ऑफ बॉम्बे, ओके, बॉम्बे के बाहर सेक्टर 1 सेक्टर 2 और चंडीगढ़ जाओगे, ओके, तो वहाँ पे भी सेक्टर 1 सेक्टर 2, गुड थिंग, तो वो थोड़ा ईजी हो जाता है। सिमिलरली अबाउट सेक्शन 5 में क्या बोला गया है, अ बिल ऑफ एक्सचेंज जो इसके पहले था वो था नॉर्मल वर्डिंग्स, अभी ये है कानून की भाषा। इज एन इंस्ट्रूमेंट, इट्स अ पेपर इंस्ट्रूमेंट। इन राइटिंग, यस, कंटेनिंग एन अनकंडीशनल ऑर्डर, हुकुम, साइंड बाय द मेकर, जिसने वो लिखा है उसने साइन किया है। डायरेक्टिंग अ सर्टन पर्सन, मतलब एक सेलर एक बायर को बोल रहा है, क्या बोल रहा है, मेरे ऑर्डर पे मेरे को पैसा चाहिए। टू पे अ सर्टन अमाउंट, 10,000, 2,000, 5,000, 6,000, 9,000, ओके, ऑफ मनी ओनली और टू द ऑर्डर ऑफ अ सर्टन पर्सन, या तो मेरे हुक्म पे पैसा दो या तो उसके हुक्म पे उसको पैसा दो, वो हम बाद में करेंगे। और टू द बेरर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट, बेरर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट मतलब एकदम सिंपल, जिसके पास वो डॉक्यूमेंट है उसको पैसे दे दो, ओके। हाँ, यू मे हैव हर्ड अबाउट अ बेरर चेक, एटलीस्ट उतना तो आपने डेफिनेटली सुना रहेगा। सेक्शन 4 which talks about a promissory note. I will not go through it right now because for the next few lectures a promissory note is not applicable to you. वो इतना important भी नहीं है, but yes, text book में दिया है तो I'll at least explain it to you. Right now, let us take our कहानी to this thing called as bill of exchange. Okay, so एक bill of exchange दिखता कैसे, देखो ऐसा दिखता है, okay, इसमें लिखा बहुत कुछ है, ओके, किसने लिखा, क्या लिखा, क्यों लिखा, ओके, उस पर हम लोग आते हैं। बट वेरी इंपॉर्टेंटली ये बिल ड्रॉ लिखता कौन है, एक सेलर, ओके। तो अज्यूम दैट दैट जेंटलमैन एट दैट एंड इज द सेलर, क्योंकि उसको पैसे नहीं मिले ना, कस्टमर बोला खाते में लिख लो, अरे खाते में तो लिख लूंगा बट 1 महीने बाद तू मुकर गया तो मेरे को प्रूफ चाहिए, कोर्ट प्रूफ मांगता है, ओरल प्रूफ नहीं होता। दिस डॉक्यूमेंट विच इज अ बिल ऑफ एक्सचेंज, इट इज अ प्रूफ, इट इज एन एविडेंस इन द कोर्ट ऑफ लॉ। ये कौन बनाता है, एक सेलर। तो अगर आप एक सेलर हो, ऐसे सोचो कि मैं एक सेलर हूँ, कस्टमर मेरे पास आया, माल लेकर गया, बोला खाते में लिख लो, मेरे को प्रूफ चाहिए, तो मैंने एक डॉक्यूमेंट बनाया। वो डॉक्यूमेंट एकदम सिंपल है, मैंने उसमें लिखा है कि ये कस्टमर मुझको इतना पैसा इतने टाइम के बाद में देगा, वेरी सिंपल एज दैट। ये बिल ड्रॉ होगा, फाइन, ये बिल फिर किसके पास जाएगा, कस्टमर के पास, ओके। कस्टमर क्या करेगा, सी वेरी सिंपल, वेन एवर यू आर गिवन अ डॉक्यूमेंट, एनी पेपर ऑन विच यू हैव टू डू या हस्ताक्षर, साइन, only a fool, बेवकूफ, गधा, will sign on a paper without reading it. Actually, गधे, fools, okay, हम सब लोग हैं, me and you and the every member in your family. Hold on, sir, what is this? You're calling everybody a fool? Yes, because when we start a Google account, when we start a WhatsApp account, when we start Instagram, when we start Facebook, there are so many terms and conditions, digital. When we start that app and install it, हम में से कितने लोग पढ़ते हैं, ओके। आज मैं मेरा हाथ को पहले उठाऊंगा, मैंने तो पढ़ा नहीं है, मैं तो सिर्फ स्क्रॉल अप करके नीचे आई एक्सेप्ट, वो डब्बे को क्लिक मार्क मारता हूँ और मैं आगे जाके इंस्टॉल कर लेता हूँ। एंड देन वी फाइट फॉर प्राइवेसी, ये व्हाट्सएप अपना कैसा सब, फेसबुक, इंस्टाग्राम कैसा मेरा सब इंफॉर्मेशन लेगा, चीटिंग। उन लोग ने तो टर्म्स एंड कंडीशन में पहले ही लिखा था। सो आई रिपीट, व्हाट एम आई ट्राइंग टू से, दैट्स अ डिजिटल थिंग, ओके। राइट नाउ व्हाट यू हैव टू रिमेंबर, दिस डॉक्यूमेंट वॉज प्रिपेयर्ड बाय द सेलर, उसको कहते हैं ड्रॉवर, DRAWER, क्योंकि उसने ड्रॉ किया, राइट किया, ओके। कोई
सन, मून, स्टार्स, नदियाँ नहीं लिखना, जो जो कंटेंट है वो लिखना है। ओके, उसने ये लिखकर किसको दिया? बायर को। तो बायर ऊपर है, बायर पूरा देख रहा है, पढ़ रहा है क्या लिखा है इसने। ओके, कितना लिखा है उसने, क्या टाइम, सब पढ़ेगा वो। सोच समझ के वो बायर ये डॉक्यूमेंट पे, आई रिपीट, बायर को क्या कहते हैं? ड्रॉई, WEE, DRAWEE। विल रीड एवरीथिंग एंड इफ एवरीथिंग इज करेक्ट, क्या करेगा वो? साइन। ओके, प्लीज नोट दैट। फाइन। तो ये ड्रॉ कैसे करना है? फाइन। और लेटर ऑन ड्रॉवर का काम क्या है, ड्रॉई का काम क्या है, सेलर का काम क्या है, बायर का काम क्या है? दैट इज वॉट वी आर गोइंग टू लर्न। ओके, आई जस्ट चेंज माई पोजिशन अ लिटिल। ओके, दिस पेपर दैट यू सी, रिटन पेपर, इसके दो नाम हैं। जब तक बायर ने इसको साइन नहीं किया, मतलब बायर के साइन के पहले ये जो पेपर आपको नीचे दिख रहा है, इसको कहते क्या है? ड्राफ्ट। व्हाट्स अ ड्राफ्ट? इट इज अ रफ वर्क, रफ वर्क। उसका कोई वैल्यू नहीं है। वैल्यू क्या है? 0, 0। यू सी, हर कानून इंडिया में, एक्चुअली नॉट इंडिया में, इन द होल वर्ल्ड, एक कानून डायरेक्टली कानून नहीं बनता। नो, पहले उसका एक रफ वर्क रेडी किया जाता है। पॉइंट 1, पॉइंट 2, 3, 4, 5, 6, 70, 80, 90, 100 सब पॉइंट्स का रफ वर्क। इट इज सेंड टू मेनी पीपल, जिस पे वो कानून का असर होगा, बराबर। तो वो लोग पढ़ते हैं 1, 2, 3, 4 एंड दे कम टू नो, अरे ये पॉइंट में गड़बड़ है, ये पॉइंट गलत है, ये पॉइंट में थोड़ा चेंज होना चाहिए। दे सेंड द रेक्टिफिकेशंस। तब तक वो ड्राफ्ट है, वो कानून नहीं बना, एक्ट, लॉ नहीं बना। ओके, उसको पुलिस बोल नहीं सकती, ये देखो ये लिखा है, चलो पकड़ के जेल में। नहीं, वो कानून ही नहीं है, पहले वो ड्राफ्ट है, रफ वर्क। ओके, सिमिलरली जब तक बायर, ये जो नीचे डॉक्यूमेंट आप देख रहे हो ना, इस पे साइन, सिग्नेचर दोनों का है, सेलर एंड बायर। ओके, बट व्हाट इज द मोर इंपॉर्टेंट सिग्नेचर? द बायर। यू सी, इफ यू आर द सेलर, आप खुद एक सेलर हो, आपका नाम ड्रॉवर। ओके, ड्रॉवर। आपने एक पेपर लिया, यू टुक दिस पेपर। पेपर किसका है? पेपर मेरा है। ओके, अच्छा, फिर क्या लिया? पेन लिया मैंने। पेन किसका है? पेन भी मेरा है। ओके, फिर क्या किया? फिर मैंने ये दोनों का कॉन्टैक्ट लिखा, मैंने लिखा 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 लिखा, लिखते गया मैं। ओके, उसके बाद क्या है? कुछ नहीं, किसी ने मेरे को कुछ बोला नहीं, मैं लिख रहा था। ऑब्वियसली रे, पेन तेरा है, ये पेपर तेरा है, ओके, टाइम तेरा है, तो लिखेगा ही ना। फिर क्या किया? मैंने साइन किया इस पे, कुछ तकलीफ नहीं हुआ? नहीं, मेरा साइन था, मैंने कर लिया। अच्छा, तो बहुत सिंपल था। हाँ, बराबर है। तू खुद अगर एक पेपर पे साइन कर रहे तो कौन सी बड़ी बात है? सो आई रिपीट, जब तू ये पेपर, ये ड्राफ्ट है, किसको देता है? बायर को। बायर रखो, पढ़ो, बायर पढ़ेगा 1, 2, 3, 4, बायर बोलेगा ओके ओके, बराबर बराबर, ओके, कि मेरे को ना 10,000 देना है, 2 महीने बाद लिखा दे, 2 महीने बाद लिखा है, गुड गुड गुड। देन द बायर विल विथ हिज पेन साइन। व्हाट इज दैट? दैट इज एक्सेप्टेंस। बायर झगड़ा नहीं कर रहा, बायर बोल रहा है ये पेपर में जो लिखा है सब सही है। कैसे? मैंने साइन किया। तब ये बन जाता है ड्राफ्ट से। प्लीज लुक एट द एंड ऑफ द सीन, स्क्रीन, बिल ऑफ एक्सचेंज। प्लीज नोट दिस डॉक्यूमेंट, ओके, वेल नॉट दिस डॉक्यूमेंट, ये जो नीचे है मेरे, ओके, इसके 2 नाम है डिपेंडिंग अपॉन द लाइफ ऑफ इट, टाइमिंग। बायर के साइन के पहले इट इज कॉल्ड एज अ ड्राफ्ट, इट इज अ रफ डॉक्यूमेंट, कानून नहीं है। ड्राफ्ट को लेकर जाकर यू कैन नॉट, लेट्स से आई हैव गॉट 10 स्टूडेंट्स, ओके, A B C D E F G, मैंने पेपर लिया और मैंने लिखा,
मिस्टर ए विल पे मी 1 लाख, मिस्टर बी विल पे मी 2 लाख, मिसेस सी विल पे मी 50,000. मैंने लिख दिया. डज दैट मीन आई विल रिसीव द मनी? नो, ये ड्राफ्ट है. इफ मिस्टर ए विल साइन, हाँ तो मेरे को पैसा मिलेगा. ऑब्वियसली ना, वो साइन करेगा क्योंकि उसको पैसे देने हैं इसके लिए. अगर उसको नहीं देने तो वो साइन नहीं करेगा. वो क्यों एक्सेप्ट करेगा? बिफोर एक्सेप्टेंस बाय द बायर, दिस डॉक्यूमेंट बिलो इज कॉल्ड एज अ ड्राफ्ट. After acceptance, it is called as bill of exchange. It becomes valuable. कीमती होता है. कोर्ट में कभी पंगा होगा between the seller and the buyer, drawer and the drawee. This document, जिस पे साइन दोनों का है, and more importantly, buyer का साइन है. Let me change this once again. मेरे पीछे buyer का साइन है. ओके, लेके जाएंगे हम लोग कोर्ट के अंदर. ओके, so I repeat. That is the कहानी, okay, of what this particular bill of exchange. इस पे very very important, शादी हो रही है, okay, और ख़ास करके मुसलमानों की शादी में एक पर्टिकुलर, और ऑलमोस्ट हर रिलीजन में ऐसा तो होता ही है कोई ना कोई स्टाइल में, बट इनके इसमें वो स्पेसिफिक वर्ड यूज़ किया जाता है, क्या कबूल है. ओके, तो जो भी मौलाना या मौलवी जो रहते हैं, ओके, जो एक तरीके से प्रीस्ट होते हैं, वो दोनों पार्टीज़ को ना पूछते हैं ना कि ये जो है इनके बेटे, ओके, आपको हस्बैंड के रूप में, मियाँ के रूप में, डू यू एक्सेप्ट और नॉट. अगर एक पार्टी बोलेगा नहीं नॉट कबूल है, तो फिर ऑटोमेटिकली ना शो आगे नहीं जाएगा. ओके, जो मेहमान आएंगे बाकी खाना पीना उनका हो जाएगा, बट जो मेन पर्पस है वो नहीं हो पाएगा. कबूल है, ये अपने बिल में कबूल है कब होता है? व्हेन द बायर साइंस, तब वो होता है कबूल है. तो ये कबूल है होना बहुत बहुत ज़रूरी है. ओके, आई होप थोड़ा आइडिया आ गया आपको कि ये बिल ऑफ एक्सचेंज का डॉक्यूमेंट कौन बनाता है? सेलर. किसके ऊपर बनाता है? बायर. इन दिस चैप्टर, bill of exchange, okay, because see, when you go to the court, you can't speak in a language which is a साधारण भाषा. no, कोर्ट को कोर्ट की भाषा समझ में आती है जो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है. तो उस भाषा में, कानून के भाषा में, जो सेलर है उसको क्या कहते हैं? ड्रॉवर, बिकॉज ही ड्रॉज द बिल. पूरा रामायण वो लिखता है, ऑलमोस्ट पूरा रामायण. सिर्फ एक क्लास में जो एक्सेप्टेंस का काम है वो बायर करता है. नाउ लेट मी शो यू कि ये कितना काम एक ड्रॉवर करता है और कितना काम एक ड्रॉई करता है. ओके, नाउ ऑन एवरी बिल ऑफ एक्सचेंज देयर हैज टू बी अ सरकारी ठप्पा, स्टैम्प. ओके, उसका एक वैल्यू होता है, कांस्टेंट वैल्यू नहीं होता वो, बिकॉज दैट डिपेंड्स अपॉन, जैसे टैक्स होता है, किसका, सबका टैक्स सेम है? नो. जो कम कमाता है कम टैक्स, जो ज्यादा कमाता है ज्यादा टैक्स. तो वैसे ही है स्टैम्प ड्यूटी. ये पेपर जो है उसका वैल्यू कितना है? अब अपन को पता नहीं, 40,000 रहेगा, 40 लाख रहेगा, 4 लाख रहेगा, डिपेंडिंग अपॉन दैट उसका स्टैम्प रहेगा. व्हाट डू यू हैव टू डू एज ए स्टूडेंट? यू जस्ट हैव टू ड्रॉ अ स्टैम्प, सिंपल. ओके, उसके बाद में उसके नीचे इन व्हाट यू कॉल numerals, numbers, 4 lakh, 40 lakh, 40,000, 4,000, whatever is the number, amount you have to write. Okay, उसके बाद में seller who is the drawer, वो अपना नाम पता लिखेगा. It's like a letter. जो एक प्रेमिका, एक प्रेमी दूसरे प्रेमी को लिख रहा है. ओके, वेल हम लोग यहाँ पे लव स्टोरी की बात नहीं कर रहे, बट एक लेटर के जैसे बात कर रहे. ओके, हाँ. सो द ड्रॉवर मतलब द सेलर अपना नाम लिखेगा, अपना एड्रेस डालेगा, और जिस दिन पे ये बिल बना उसको कहते हैं डेट ऑफ बिल. वेरी सिंपल. उसके बाद में एक पैराग्राफ आएगा. ओके, तो ये पैराग्राफ में क्या लिखा जाएगा? वेल वो डिपेंड करता है, कुछ चीज़ें ब्लैंक रहती है. ओके, ब्लैंक क्यों रहती है? क्योंकि वो हर डॉक्यूमेंट
और हर बायर सेलर के बीच में जो कहानी है उसके हिसाब से चेंज होती है। ओके, पहले है ब्लैंक डैश आफ्टर डेट। अभी ये क्रेडिट पीरियड क्या है उसके अंदर, देखो 2 महीना रहेगा तो लिखो 2 months आफ्टर डेट। कौन किसको बोल रहा है, कौन सा प्रेमी किस प्रेमी को बोल रहा है? द सेलर इज टेलिंग द बायर, सेलर दुकानदार कस्टमर को, क्लाइंट को बोल रहा है ड्रॉ ई 2 महीने बाद, याद रख क्या, पे डैश और डैश, मतलब वो बोलेगा पे मी, मेरे को पैसे दो, सो सिंपल। आगे द सम ऑफ रुपीज 2000 3000 5000 50, कुछ ना कुछ वैल्यू रहेगा ना। फॉर द वैल्यू रिसीव्ड, वो मतलब मैं बोल रहा हूँ तुझको, तेरे को मैंने उतने का सामान दिया ना, अब तू मेरे को मेरे पैसे दे दे। हाँ, तो आई रिपीट, वट एवर आर द ब्लैंक पार्ट्स that will keep on changing depending upon what is the information given in that particular problem. Okay, you all have to just remember on one page, left या right, आपको ये बनवाना है। एकदम लेफ्ट में एंड में टॉप पे स्टैम्प आप लिख दो 2 लाइन के लिए, उसके नीचे 2 लाइन के बाद में जो रुपीज़ रहेगा उसके लिए एक ब्लॉक बना दो। राइट साइड एंड पे आप आपका जो सेलर का नाम है, ड्रॉवर का नाम है, ड्रॉवर का एड्रेस है, डेट ऑफ बिल, उसके बाद में ये पैराग्राफ। दिस पैराग्राफ कैन बी 3 lines 4 lines 6 lines, दैट डिपेंड्स अपॉन योर हैंड राइटिंग। ओके, हाँ, बट एक पैराग्राफ जैसे रहेगा। ये सब काम कौन कर रहा है? द सेलर। इसके बाद में सेलर अपना सिग्नेचर करेगा, ड्रॉवर। तो दिस ये जो है ना SD, दैट इज नथिंग बट अ सिग्नेचर। आपको साइन नहीं करना है। अगर रमेश है तो तुमको रमेश का साइन नहीं सीखना है। ओके, मैं यहाँ पे कोई जाली साइन बनाने का क्रैश कोर्स नहीं दे रहा हूँ मैं, तो साइन के लिए SD डाल दो, समझ में आ गया क्या वो सिग्नेचर है। ओके, फिर ड्रॉवर ड्रॉई का नेम एंड एड्रेस लिखिएगा, मतलब बायर का नेम एंड एड्रेस। ओके, तो वो बॉटम में आ जाएगा। इतना काम वेरी इंपॉर्टेंट, इतना काम कौन करता है? द सेलर। इतना पूरा काम सेलर करेगा। इसको बंद करेगा, या तो खुद के शुभ हाथों से डिलीवर करेगा, या तो कुरियर या पोस्ट के द्वारा, डिपेंड करता है कि बायर कितने दूर रहता है, डिपेंड करता है। ओके, दिस विल रीच टू द बायर विल रीड। अंधाधुन साइन नहीं करेगा, नो नो नो, द बायर विल रीड। पूरा ऊपर से नीचे वो पढ़ेगा, मैग्नीफाइंग ग्लास लेकर पढ़ेगा। एंड अगर सब कुछ ओके है, बायर का काम क्या है? एक्सेप्ट करना। तो बायर इस पे एक्सेप्टेड लिखिएगा, बोलेगा कबूल है, हो गई शादी। वेल, शादी नहीं, मतलब यहाँ पे एटलीस्ट स्टोरी की अच्छी एंड हो गई। कैसे कबूल है? साइन करेगा वो अपना, वेरी इंपॉर्टेंट, ड्रॉ ई अपना साइन करेगा, और जिस दिन पे वो साइन करेगा कॉल्ड एज डेट ऑफ एक्सेप्टेंस। वॉट यू सी बिसाइड्स मी इज द लुक of a bill of exchange. There are multiple varieties. Little by little I will go into all the varieties. Upcoming lectures will be a lot simpler and smaller compared to today's lecture. Today was an introductory lecture, obviously. Okay, हाँ, but you have to keep in mind कि मैं किसके दिमाग से सोचूं. You always think from the perspective of a seller, drawer, क्योंकि मैक्सिमम काम तो सेलर का ही है. अगर सब बराबर रहा, बायर यही काम करता है, वो क्या है? एक्सेप्टेड. हाँ, तो आई रिपीट माई सेल्फ, कभी कभी एक्सेप्टेड में कुछ गड़बड़ होता है, वो ड्यूरिंग द अपकमिंग लेक्चर्स में आपको बता दूंगा. सो देर आर बेसिकली इन एवरी बिल ऑफ एक्सचेंज 2 parties मिनिमम, ड्रॉवर ड्रॉई, सेलर एंड बायर. ओके, आई होप ये बिल ऑफ एक्सचेंज का जो सूरत है, शक्ल है, उतना तो आपको समझ में आ गया. एज इन व्हेन वी डू the practice of this from the textbook, whether वो solved रहेगा, whether वो unsolved रहेगा, आपको इसके बारे में, कुछ मुद्दों के बारे में थोड़ा थोड़ा करके मैं खुलासा आगे करता जाऊंगा. ओके, सो आज के लिए ये लेक्चर इतना ही रखते हैं. अगर आपको जितना मैंने बताया समझ में आ गया तो लेक्चर को प्लीज़ लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए, दूसरों तक हमारे लेक्चर्स के बारे में, इस चैनल के बारे में जानकारी पहुंचा दीजिए. अपना ख्याल रखिए. अगर कुछ आपको समझ में नहीं आया, आपकी तरफ से कोई रिक्वेस्ट है, दरख्वास्त है, आप कमेंट बॉक्स का उपयोग कर सकते हो. जब तक हम अगली बार ना मिले, अपना ख्याल रखिए. बड़ों का, छोटों का, परिवार वालों का, सभी का ख्याल रखिए. हैव अ गुड डे अहेड. गॉड ब्लेस ईच एंड एवरीवन. बाय फॉर नाउ.